ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੋ ਕੋਇਲਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਫੰਡਾ ਜਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਾਂ ਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਨੇ। ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਇਲ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਪੋਜ਼ਿਸ ਟੂ ਚੇਂਜ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਇਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਫਿਰ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੋਇਲ 'ਚ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕੋਇਲ 'ਚ EMF ਦਾ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ EMF ਦਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਸੇਮ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਕੋਇਲਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਕੋਇਲ, this is second coil. Both are placed lying close to each other. Both coils placed very close to each other. ਦੋਨੇ coils ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ so that second coil is placed inside the influence of first coil. second coil first coil ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਕੋਇਲ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਫਸਟ ਕੋਇਲ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਇਲ 'ਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ EMF ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਦਿਸ EMF opposes any change in current, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਿਸ ਕੋਇਲ 'ਚ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ 'ਚ EMF ਦਾ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਬਟ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਇਲ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕੋਇਲ 'ਚ, ਉਹ EMF ਪਹਿਲੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਦੈਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਸ 'ਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਕੋਇਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਇਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ। ਤਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ whenever current is changing in primary coil, then an EMF is induced in secondary coil which opposes the change of current in primary coil. ਇਹ ਜਿਹੜੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ 'ਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਸੇਮ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ,
This one is a secondary coil. Primary coil, secondary coil. अगर प्राइमरी coil चो करंट इंक्रीज होने की कोशिश करता है, करंट wants to increase, this is the direction of current, करंट इंक्रीज होने की कोशिश करता है तो इस च EMF इंड्यूस होएगी ओपोजिट डायरैक्शन च, करंट नालों ओपोजिट डायरैक्शन च EMF इंड्यूस होएगी, एवें इस च करंट इंड्यूस होएगा बेटा ओपोजिट डायरैक्शन च। ये EMF इस करंट नू इंक्रीज नहीं होने देगी। एंड अगर सपोज दिस इज प्राइमरी कॉइल and this is a secondary coil, primary coil, secondary coil। तो अगर एवं करंट फ्लो हो रहा है एंड करंट वांट्स टू डिक्रीज, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है इस तरीके नाल फ्लो हो रहा है बेटा बट वो डिक्रीज हो रहा है, फिर जी EMF इंड्यूस होएगी वो सेम डायरैक्शन च इंड्यूस होएगी, सेम डायरैक्शन च इंड्यूस होके इस करंट नू डिक्रीज होने तो रोकेगी। बस सेम कंसैप्ट है ना बेटा, सैल्फ इंडक्शन वाला ही कंसैप्ट है। जे करंट इंक्रीज होंदा सी तो EMF ओपोजिट डायरैक्शन च इंड्यूस होकर उन्होंने इंक्रीज होने तो रोकती सी, जे करंट डिक्रीज होंदा सी फिर EMF सेम डायरैक्शन च इंड्यूस होकर उन्होंने डिक्रीज होने तो रोकती सी। सेम कंसैप्ट है बेटा। ये अगर करंट इंक्रीज हो रहा है फिर जी सैकेंडरी कॉइल च EMF इंड्यूस होएगी बेटा, ये ओपोजिट डायरैक्शन च इंड्यूस होएगी तो प्राइमरी कॉइल के करंट नू ईजीली इंक्रीज नहीं होने देगी। एंड अगर करंट डिक्रीज हो रहा है फिर सैकेंडरी कॉइल च EMF इंड्यूस होएगी सेम डायरैक्शन च एज दैट इन प्राइमरी कॉइल, तो ये EMF इस करंट नू डिक्रीज नहीं होने देगी। तो बेटा एक कॉइल का कंसैप्ट है तो इट इज़ सैल्फ इंडक्शन, बट अगर दो कॉइल्स का कंसैप्ट है तो इट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। वैन एवर करंट इज चेंजिंग इन प्राइमरी कॉइल, whenever current is changing in primary coil and EMF is induced in secondary coil। क्यों इंड्यूस होएगी बेटा, उसका कंसैप्ट भी सेम है, फैराडेज लॉ। किमें सेम है समझो, उधर आ समझा रहे हैं थोनू। जो बेटा इस चो करंट फ्लो होएगा तो इस दे अंदर मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा। सानू पता है एक कॉइल दे विच कितना मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदा म्यू नॉट NI। तो जो ये करंट चेंज होएगा तो बेटा फील्ड चेंज होएगा। यही फील्ड इस दे नाल लिंकड है क्योंकि अपने मैं थोड़ा इत्थे कहा बोथ कॉइल्स प्लेस्ड वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। सेकेंड कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट कॉइल के, है ना बेटा मैंने भी सेकेंड कॉइल फर्स्ट कॉइल के इन्फ्लुएंस च पई है। फर्स्ट कॉइल का जो फील्ड है वो सेकेंड कॉइल नाल लिंकड है। मैगनैटिक फील्ड of first coil is linked with second coil। तो बेटा यही फील्ड इस नाल लिंकड है। जो ये फील्ड चेंज होएगा तो सेकेंड कॉइल का फ्लक्स चेंज होएगा। फ्लक्स जो फर्स्ट कॉइल का करंट चेंज होएगा, करंट चेंज होने दे नाल फील्ड चेंज होएगा। फर्स्ट कॉइल के फील्ड चेंज होने नाल सेकेंड कॉइल का फ्लक्स चेंज होएगा। फ्लक्स ऑफ सेकेंड कॉइल, फ्लक्स चेंज होएगा तो इस दे विच EMF इंड्यूस होएगी। फ्लक्स चेंज होएगा तो EMF इंड्यूस होएगी। बस आही कंसैप्ट है। यही कंसैप्ट असी किस च लगाया सी, सैल्फ इंडक्शन च लगाया सी। सैल्फ इंडक्शन च भी तो यही लग्या सी, बस उत्थे अन्ना कंसैप्ट सीगा भी जिस कॉइल का करंट सी उसे कॉइल का फील्ड चेंज हुंदा सी, उसे कॉइल का फ्लक्स चेंज हुंदा सी, उसे कॉइल च EMF इंड्यूस हुंदी सी सैल्फ इंडक्शन च। बट इन म्यूचुअल इंडक्शन current is changing in primary coil, current is changing in primary coil due to which magnetic flux is changed in secondary coil। प्राइमरी coil का करंट चेंज होने नाल सेकेंडरी coil का फ्लक्स चेंज होएगा, है ना। फ्लक्स चेंज होएगा, फ्लक्स चेंज होने नाल EMF इंड्यूस होएगी। तो आप ये लिख सकते हैं बेटा भी जिहड़ा करंट है ये असी चेंज करवाना इन प्राइमरी coil एंड फ्लक्स इज चेंज इन सेकेंडरी coil, है ना। तो जो भी प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होएगा सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होएगा एंड सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होएगा तो सेकेंडरी कॉइल EMF इंड्यूस होएगी। एंड अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ
इस EMF की डायरैक्शन होएगी भी जिस दे कारण EMF इंड्यूस हो रही है उस नूं अपोज करेगी। EMF क्यों इंड्यूस हो रही है? क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। तो ये EMF इस करंट नूं चेंज होने तो रोकेगी। इफ करंट वांट्स टू इनक्रीज तो ये EMF इस नूं इनक्रीज होने तो रोकेगी, इनू अपोज करके एंड इफ करंट वांट्स टू डिक्रीज तो ये EMF उसनू डिक्रीज होने तो रोकेगी, इनू सपोर्ट करके। बेटा एक कंसैप्चुअल क्वेश्चन है, डायग्राम देख के ना एवें पूछा जाता होंगे, ये दिता होंगे भी करंट इनक्रीज हो रहा है या करंट डिक्रीज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डायरैक्शन बनानी होंगी है EMF की। तो यह ख्याल रखियो, इंपोर्टेंट है भी अगर करंट इनक्रीज हो रहा है तो EMF ओपोजिट डायरैक्शन इंड्यूस होएगी, उन्होंने इनक्रीज होने तो रोकेगी। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो EMF सेम डायरैक्शन इंड्यूस होकर उन्होंने डिक्रीज होने तो रोकेगी। दैट फिनोमिना ऑफ द टू कॉइल्स वैन एवर, आ देखो, वैन एवर करंट इज चेंजिंग इन द प्राइमरी कॉइल एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, है ना, दैट फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। इस फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं बेटा। एग्रीड? समझ आया? सेम कंसैप्ट है, सैल्फ इंडक्शन वाला ही है, बस सैल्फ इंडक्शन एक कॉइल ते लगता है, उस कॉइल च करंट चेंज होता है, उस कॉइल च EMF इंड्यूस होती है। म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल्स के बिटवीन लगता है, जो एक कॉइल चो करंट चेंज होता है, सैकेंड कॉइल च EMF इंड्यूस होती है। बट बी केयरफुल, बोथ कॉइल्स प्लेस्ड वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। दोनों कॉइल्स एक दूजे के बहुत नेड़े होनी चाहिए ने। सैकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के इन्फ्लुएंस्ड होनी चाहिए, दूर नहीं होनी चाहिए। क्लीयर बेटा? तो इत्थों आप हुण अगे कंसैप्ट बिल्डअप करते हैं। हुण इत्थों आपां नूं ये पता चल गया भी वैन एवर करंट इज चेंजिंग इन प्राइमरी कॉइल, मैं इधर लिख देना बेटा, यस, वैन एवर करंट इज चेंजिंग इन प्राइमरी कॉइल, है ना, जिस दे कारण प्राइमरी कॉइल का फील्ड चेंज होएगा, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल चेंजेस। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होंगे म्यू नॉट NI, पढ़िया सोलेनॉइड वाले टॉपिक च पढ़िया होया। तो जो प्राइमरी का करंट चेंज होएगा तो प्राइमरी का फील्ड भी चेंज होएगा, है ना बेटा। प्राइमरी का करंट चेंज होना, प्राइमरी का फील्ड चेंज होगा। दिस फील्ड इज लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। ये फील्ड किस नाल लिंक्ड किया हुआ सी? सेकेंडरी कॉइल। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल आल्सो चेंजेस, है ना। सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होएगा, BA cos थीटा, B हो गया प्राइमरी कॉइल का। बेटा जो प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होएगा, करंट चेंज होने नाल प्राइमरी का फील्ड चेंज होएगा, यही फील्ड किस नाल लिंकड है? सेकेंडरी कॉइल नाल। फील्ड चेंज होएगा तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होएगा, एंड ड्यू टू विच EMF is induced in secondary coil। secondary coil च EMF इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। हुण बेटा इत्थों आप कंसैप्ट लिखते हैं भी फाई फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी coil is directly proportional to magnetic field of primary coil and magnetic field of primary coil is directly proportional to current of primary coil। तो आप कंसैप्ट ये बन गया भी फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी coil is directly proportional to current of primary coil। ये मैं बेटा शायद थोड़े नोट्स च ना पाया होवे S ते P रिप्रजेंट्स प्राइमरी, S रिप्रजेंट्स सेकेंडरी। जिहड़ा आपां ने सैल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक पढ़िया सी, सैल्फ इंडक्शन, है ना, उस दे विच सिर्फ फाई ते आई सीगा, कोई प्राइमरी ते सेकेंडरी नहीं सीगा, फाई एंड आई सीगा। आई इज़ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, फाई इज़ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। सैल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन ये कंसैप्ट रखियो नाल, थोनू पहचान हो जाएगी भी करंट किस दा लेना है, फ्लक्स किस दा लेना है। ओके, सो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल अगर हटावांगे तो कॉन्स्टेंट लगावांगे M, ठीक है। इस च असीं कॉन्स्टेंट लगाते होंगे सी L।
ਐਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ। ਐਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ टू coils, दो coils का म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ओके। EMF इंड्यूस कितनी होएगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला -N/d∅/dt सी। N इज नंबर ऑफ टर्न्स, नैगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरैक्शन, तो आप कॉमन फार्मूला यूज कर लेने E इज इक्वल टू d∅/dt। नैगेटिव साइन डायरैक्शन दसदा, नैगेटिव साइन नूं छड्ड दिंदे, नैगेटिव साइन टेल्स अस डायरैक्शन। तो बेटा इंड्यूस्ड EMF जनरल फार्मूला ये सीगा ना फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। तो इत्थे फाई की वैल्यू अगर आप पुट करिए E इज इक्वल टू d/dt ऑफ, है ना, d/dt ऑफ MIP, है ना। लगाना नैगेटिव साइन लगा भी सकते हो, कोई मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, लगाना लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। उरे जो तुम पुट करोगे लो मैं लगा देना। बस इन्ना याद रखियो भी नैगेटिव साइन सिर्फ डायरैक्शन दसदा, नैगेटिव साइन ओनली टेल्स डायरैक्शन। ओके ओके। M इज कॉन्सटेंट कम्स आउटसाइड, तो यह फार्मूला बन गया बेटा। ठीक है, जिमें सैल्फ इंडक्शन च बनया सी ना फार्मूला, सैल्फ इंडक्शन च फार्मूला बनया सी E इज इक्वल टू -L/di/dt। उत्थे -L/di/dt सी, ये -M/dIp/dt, है ना। दिस इज EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कोयल, एस पा देना मैं नाल। EMF इज करंट इज चेंजिंग इन प्राइमरी कोयल, EMF इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कोयल। जो सिंगल कोयल का क्वेश्चन है, सिंगल कोयल का, दैट मीनस इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सैल्फ इंडक्शन, फिर फार्मूला लगाना है E इज इक्वल टू L/di/dt। बट जो दो कोयल्स का क्वेश्चन है, दो कोयल्स का, फिर फार्मूला लगाना है MDIP/dt। P लगाना है लगा लो, नहीं तो ये फार्मूले ने तुसी याद रखना है बेटा, एवें भी याद रख सकते हो, हलो कोई दिक्कत नहीं है, एवें भी याद रख सकते हो। बस इन्ना क याद रखियो भी करंट इज चेंजिंग इन वन कोयल, EMF इज इंड्यूस्ड इन अनदर कोयल। If current is changing in primary coil, EMF is induced in secondary coil. If current is changing in secondary coil, EMF is induced in primary coil। मतलब दोनों coils अलग अलग ने, करंट एक coil का लेना है, EMF दूसरी coil की लेनी है जो M लग्या होएगा। जो L लग्या होएगा तो करंट एंड EMF सेम coil दे होंदे। तो सेम coil का कंसैप्ट है, सेम coil जिस coil च करंट चेंज हो रहा है उसे च EMF इंड्यूस फाइंड आउट करनी है तो L यूज़ करना है। जे एक कोयल च करंट चेंज हो रहा है, EMF इंड्यूस दूसरी कोयल च कढ़नी है, फिर M कढ़ना है। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी, L वाला फार्मूला लगाना है भी जिस कोयल च करंट चेंज हो रहा है उसे दे विच EMF कढ़नी होवे, उसे दे विच तो L लगेगा, है ना। बट एक कोयल च करंट चेंज हो रहा है, दूसरे च EMF इंड्यूस करनी है तो M लगेगा। फार्मूले दोनों सेम ने, माइनस साइन यही इंडीकेट करता है भी जी EMF इंड्यूस होएगी वो करंट नू चेंज होने तो रोकेगी। EMF इंड्यूस्ड इन द कोयल अपोजिट द चेंज इन करंट, समझ गए, वो करंट नू चेंज होने तो रोकेगी, दैट्स माइनस साइन इंडीकेट्स। हुण बेटा जिवें आपां ने L दियां डेफिनेशनस कीतियां सी, आपां M दियां डेफिनेशनस भी कर लैंदे हैं। M दी डेफिनेशन कर लैंदे हैं, M दे यूनिट्स डिस्कस कर लैंदे हैं, सारा इहदा M दा फार्मूला भी बना लैंदे हैं। ठीक है, जिमें सैल्फ इंडक्शन च कीता सीगा, आलमोस्ट सेम कंसैप्ट है बेटा, आलमोस्ट, बस दो कोयल्स दा, इट इज़ अ कंसैप्ट ऑफ टू कोयल्स। ओके, ठीक है राजे। हुण आपां डेफिनेशन ऑफ M, M नूं असीं की बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोयल्स। तो बिकॉज फ्लक्स दा फार्मूला है बेटा MIP, है ना। इत्थों M की डेफिनेशन बना लो, उरो बना लो, बस एक ही डेफिनेशन बना लेने। इफ IP इज इक्वल टू 1 then this is equal to M, है ना। तो इत्थों की बन जाएगी डेफिनेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कोयल्स may be defined as magnetic flux linked with secondary coil when unit current is flowing through primary coil, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन
two coils may be defined as magnetic flux linked with secondary coil, magnetic flux linked with secondary coil when unit current is flowing through प्राइमरी कोयल। जो प्राइमरी कोयल चो यूनिट करंट फ्लो करेगा उस वक्त सेकेंडरी कोयल नाल जिन्ना फ्लक्स लिंक्ड होएगा दैट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कोयल्स। ये एम की डेफिनेशन होगी। एम के यूनिट्स सेम, यूनिट्स ऑफ एम इज सेम एज यूनिट्स ऑफ एल। मतलब एम के यूनिट्स एल वाले ने, एल के यूनिट्स सीगे हैनरी, हैनरी डिनोटेड बाय एच नाल डिनोट करते सी। ठीक है, 1 हैनरी की डेफिनेशन देनी है, दे सकते हो। ठीक है, यही फार्मूला यूज़ करके बना लेने एज फ्लक्स इज इक्वल टू एम आई पी। इफ आई पी इज इक्वल टू 1, फ्लक्स इज इक्वल टू 1, देन एम इज़ इक्वल टू 1 हैनरी। मतलब ये होया भी जदों प्राइमरी कोयल चो यूनिट करंट फ्लो होवे ते सेकेंडरी कोयल च 1 वेबर दा फ्लक्स प्रोड्यूस होवे, यूनिट 1 एम्पीयर ऑफ करंट फ्लो होवे ते 1 वेबर दा फ्लक्स लिंक होवे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेट टू बी 1 हैनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोयल्स इज सेट टू बी 1 हैनरी when on passing 1 ampere of current through primary coil produces magnetic flux of 1 Weber through secondary coil, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन two coils is said to be 1 Henry when on passing a current of 1 ampere through primary coil produces a magnetic flux of 1 Weber through secondary coil। ओके, भी दो coils ਦਾ म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हैनरी उदों होएगा जदों 1 एम्पीयर करंट प्राइमरी कोयल चो पास होने नाल सेकेंडरी कोयल का फ्लक्स 1 वेबर बने, तो दोनों कोयल्स का एम 1 हैनरी होएगा। एम तो एल के डिमेंशनल फार्मूले सेम है बेटा, क्योंकि एम का फार्मूला भी 5/I है, एल का फार्मूला भी 5/I है ना। बस इस FI/S है, IP है, दोनों का फार्मूला सेम है, तो बेटा दोनों का डिमेंशनल फार्मूला सेम होएगा। डिमेंशनल फार्मूला इज़ सेम, जो डिमेंशनल फार्मूला एल का सीगा वही डिमेंशनल फार्मूला एम का होएगा। ठीक है, अच्छा हुण आपां दो कोयल, जिमें आपां ने एक कोयल का एल फाइंड आउट किया सी, है ना, एल की वैल्यू आई सी μ0 n² A/L, याद है ना। उमें आपां हुण दो कोयल्स का एम का फार्मूला बनाने, दो कोयल्स का एम फाइंड आउट करते। ठीक है, अपना टॉपिक हैगा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। ठीक है बेटा। अच्छा, फॉर मेकिंग कैलकुलेशनस ईजी, कैलकुलेशनस नूं ईजी करने वास्ते असी दोने सोलेनॉइड्स की लेंथ, दोने सोलेनॉइड्स की लेंथ, दोने सोलेनॉइड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, ठीक है, तो दोने सोलेनॉइड्स नूं एक दूजे के उपर ही वाउंड कर देंगे, ये सेम रखांगे फॉर मेकिंग कैलकुलेशनस ईजी। जे दोने कोल सोलेनॉइड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन सेम नहीं है, लेंथ सेम नहीं है, मैं थोड़ा वो भी टॉपिक करवा दूँगा, पर फिलहाल फॉर मेकिंग कैलकुलेशनस ईजी ओनली
for making calculations easy। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸੋਲੇਨੋਇਡਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਸੇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਾਊਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਬੇਟਾ। दिस इज प्राइमरी coil, ठीक है, एंड वेट अ मिनट, दिस इज सेकेंडरी coil। And these are the two coils, okay, this one is primary coil and this one is secondary coil। प्राइमरी coil ਤੇ secondary coil ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ N1 ਨੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ N2 ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬੇਟਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਲਕਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ, ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਟੂ ਸੋਲੇਨੋਇਡਸ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਊਂਡਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਇਜ਼, ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ, ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਊ ਨੋਡ I, ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਿਊ ਨੋਡ NI। ਇਹ ਯੂਨਿਟ 3rd 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਹੈ ਨਾ। N ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ N1, ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ L, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਫੀਲਡ ਬਣੇਗਾ। ਦਿਸ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ, this field is linked with secondary coil। ਇਹ secondary coil ਨਾਲ linked ਹੈ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। secondary coil primary coil ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ, same field is linked with secondary coil, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ magnetic flux of secondary coil ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ, magnetic flux of one turn of ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ, ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਫਲਕਸ ਕੱਢ ਲਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਊ ਨੋਡ N1/L ਇੰਟੂ IP। ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਥੀਟਾ 0, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੋਥ ਆਰ ਇਨ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, cos 0 1। ਸੋ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਫਲਕਸ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਫਲਕਸ ਮਿਊ ਨੋਡ N1L IP ਇੰਟੂ A, है ना। सारिया टर्न्स का फ्लक्स कर लो, टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कोयल, टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कोयल इज
ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲਕਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਲਕਸ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਫਲਕਸ ਆਇਆ ਮਿਊ ਨੋਡ N1/L IPA, that is flux of one turn into number of turns ਕਰਤੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਮਿਊ ਨੋਡ N1 N2/L IP into A। ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਸੀਗਾ, ਇਨ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਲਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ MIP, ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ MIP IP ਨਾਲ ਆ ਵਾਲਾ IP ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਮਿਊ ਨੋਡ N1 N2A/L। ਸੇਮ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟਾ L ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਿਊ ਨੋਡ N²A/L, ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, N² ਦਾ ਬਸ N1 N2 ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਉਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਕੋਇਲਸ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਊ ਨੋਡ ਲੱਗੇਗਾ, बट अगर दोनों कोइल्स मीडियम च है तो म्यू लगेगा, समझ गए। सेम कंसैप्ट है बेटा, समझ आ गया। पहला आपाने प्राइमरी के करंट कारण प्राइमरी का फील्ड कढ़ लिया, वो फील्ड सैकेंडरी नाल भी लिंकड सीगा, सैकेंडरी के एक टर्न का फ्लक्स कढ़ लिया, एक टर्न के फ्लक्स नूं सैकेंडरी दी नंबर ऑफ टर्नस नाल मल्टीप्लाई करके टोटल फ्लक्स कढ़ लिया, टोटल फ्लक्स नूं MIP वाले फार्मूले नाल इक्वेट करके IP नाल IP कैंसल होकर फार्मूला बन, ठीक है ओके। तो अगर देखो ये तो कंसैप्ट तो हो गया ना जे कैलकुलेशनस ईजी करनिया ने, एरिया एंड लेंथ सेम रखी आपाने, है ना। अगर एरिया डिफरेंट अलग अलग हो, लेंथ अलग अलग हो, इफ़ एरिया एंड लेंथ बोथ आर डिफरेंट, इफ़ एरिया एंड लेंथ ऑफ बोथ coils आर डिफरेंट, फिर बेटा एरिया लेना इनर सोलेनोइड का एंड लेंथ लेनी है लॉन्गर सोलेनोइड की। जो भी न्यूमेरिकल आएगा ना, एरिया लेना इनर सोलेनोइड का जिहड़ा अंदर है, मतलब स्मॉलर जिहड़ा अंदर है, लॉन्ग L लेंथ लेनी है लॉन्ग जिहड़ा सोलेनोइड लंबा है, ठीक है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ डिफरेंट एरिया लैके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सॉल्व करके दिखाना यही क्वेश्चन, क्लीयर। डिफरेंट एरिया लैके फिर सॉल्व करके दिखाना बेटा ये सेम क्वेश्चन। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट यही फार्मूला बनेगा, सेम फार्मूला ही बनेगा बेटा, यही वाला फार्मूला बनेगा। डिफरेंट एरिया लैके सॉल्व करते हैं आप। यस बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस when area of cross section is different, ठीक है। दो केसेस ले लेने, केस फर्स्ट when current is flowing through primary coil and flux is linked with secondary coil। इससे ये डिफरेंट लेके चलेंगे, ठीक है। पहला केस जो प्राइमरी कोयल चो करंट फ्लो करेगा, सैकेंडरी कोयल फ्लक्स, तो बेटा आप पहला मैं थोड़ा प्राइमरी कोयल बना देना, दिस इज प्राइमरी कोयल, प्राइमरी कोयल हैविंग रेडियस R1, ठीक है, एंड दिस इज सेकेंडरी कोयल।
ओके। सेकेंडरी कॉइल हैविंग रेडियस R2, प्राइमरी कॉइल का रेडियस R1 है, सेकेंडरी कॉइल का रेडियस R2 है। मतलब जी सेकेंडरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल के अंदर पई है, ठीक है। आप इस करंट नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल N1, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल N2, करंट असी फ्लो करवाना है प्राइमरी कॉइल चो, एंड असी फ्लक्स फाइंड आउट करांगे सेकेंडरी कॉइल का। क्लियर बेटा? ये दो कॉइल्स हैं हैविंग डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस चो प्राइमरी चो करंट पास आउट करे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल च प्रोड्यूस होगा, है ना। आ सारे किते देखो, मैं डायग्राम बना रहा बेटा, आ सारे किते मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस होंगी। सारे किते मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस होंगी ड्यू टू करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। इन्हां मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन तुसी फाइंड कर सकते बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, यूनिट 3rd च सिखाया हुआ मैं तुहानू, है ना। तो ये सारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा बेटा प्राइमरी कॉइल कारण। ओके, सो ड्यू टू करंट of primary coil, magnetic field produced in it is, बेटा प्राइमरी कॉइल च कितना फील्ड प्रोड्यूस होएगा, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इनटू IP। नंबर ऑफ टर्न्स N होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी दी N1, लेंथ L इंटू IP। इन्ना फील्ड प्रोड्यूस होएगा प्राइमरी का, ठीक है। फ्लक्स असी किदा करना है, सेकेंडरी का बेटा। दिस फील्ड इज लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, this field is linked with secondary coil, so magnetic flux of one turn of secondary coil, magnetic flux of one turn of secondary coil, एक टर्न का फ्लक्स बेटा, फ्लक्स का फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बोलो मैग्नेटिक फील्ड जेड़ा प्राइमरी कॉइल है इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंडरी कॉइल cos थीटा। प्राइमरी कॉइल का कितना फील्ड है बेटा, म्यू नॉट N1 बाय L IP। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेकेंडरी कॉइल के रेडियस के अकॉर्डिंग बनेगा बेटा, आ वाला इन्ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा इन्ना, है ना बेटा। तो सेकेंडरी कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होएगा, क्योंकि इसी सेकेंडरी कॉइल का टर्न काट रहे फ्लक्स काट रहे हैं ना, तो सेकेंडरी कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लवांगे कितना, पाई R2 स्क्वायर। एग्रीड, पाई R2 स्क्वायर। प्राइमरी का एरिया पाई R1 स्क्वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेकेंडरी का पाई R2 स्क्वायर। ये एक टर्न का फ्लक्स हो गया, ओके। टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज, सेकेंडरी कॉइल का जो टोटल फ्लक्स है बेटा जिन्ना एक टर्न का फ्लक्स है इंटू सेकेंडरी कॉइल या नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न का फ्लक्स कितना है, म्यू नॉट N1 IP बाय L इंटू ये आ गया N2, है ना। तो फ्लक्स का फार्मूला आप की लगावांगे बेटा, MIP, IP नाल IP कैंसल, M का फॉर्म सॉरी इस चो रह गया पाई R2 स्क्वायर, है ना। तो M का फार्मूला बन जाएगा म्यू नॉट N1 N2 बाय L इंटू पाई R2 स्क्वायर। समझ गए, आ जो एरिया लेता अपने पाई R2 स्क्वायर बेटा इनर सोलेनॉइड है,
इनर सोलेनोइड का, अंदरले सोलेनोइड का। ठीक है, हुण इहदा केस सैकेंड समझ आ गया ना, ये एरिया इनर सोलेनोइड का बेटा। हुण केस सैकेंड, केस सैकेंड, इस च असीं वैन करंट इज flowing through secondary coil and flux is linked with primary coil। उल्ट करता, मतलब जिमें इस च जिहदा एरिया वड्डा सी उस चों करंट फ्लो हो रहा सी, दूसरे दा फ्लक्स कढदे सी छोटी कोयल दा। इस च हुण आपां की करांगे है ना, जिहड़ी छोटी कोयल है उस चों करंट ले लांगे, वड्डी दा फ्लक्स कढांगे। वैन करंट इज फ्लोइंग थ्रू सैकेंडरी कोयल, EMF इज लिंक्ड विद प्राइमरी कोयल। ये वाला केस लैने, इस दे विच भी उवें डायग्राम बनाने बेटा। पहला तो सेम डायग्राम बनाने पहला, प्राइमरी कोयल, this is primary coil having radius R1, number of turns N1। इस च प्राइमरी कोयल बना लो एक, सॉरी सेकेंडरी, this is secondary coil having number of turns N2। हुण करंट असी लवांगे किहदा बेटा, सेकेंडरी कोयल का, एंड फ्लक्स असी फाइंड आउट करांगे प्राइमरी कोयल का। मतलब हुण करंट छोटी कोयल चों ले लिया, फ्लक्स वड्डी कोयल का कढ रहे। समझ गए, करंट छोटी कोयल चों ले लिया, फ्लक्स वड्डी कोयल का कढ रहे। ओके, प्राइमरी कोयल, दिस इज सेकेंडरी कोयल। ओके, अच्छा हुण जदों सेकेंडरी कोयल चों करंट फ्लो होएगा तो सेकेंडरी कोयल च मैगनैटिक फील्ड लाइनस प्रोड्यूस होणगीਆਂ इत्थे इत्थे, बस उरे उरे। जदों प्राइमरी चों करंट फ्लो हुंदा सी तां प्राइमरी दे एरिए च फील्ड लाइनस प्रोड्यूस हुंदियां सी। प्राइमरी दे एरिए च आ सारे वड्डे एरिए च, आ सारे एरिए च फील्ड लाइनस प्रोड्यूस हुंदियां सी क्योंकि प्राइमरी चों करंट फ्लो हुंदा सी। हुण जदों सैकेंडरी चों करंट फ्लो हो रहा है, सैकेंडरी चों, तां सैकेंडरी च EMF, सैकेंडरी दे विच मैगनैटिक फील्ड लाइनस प्रोड्यूस होणगीਆਂ। बेटा जिहड़ा आ वाला पोर्शन बच गया, इत्थे फील्ड लाइन प्रोड्यूस नहीं होएगी। आ वाले पोर्शन च इत्थे कोई फील्ड लाइन नहीं प्रोड्यूस होनी, क्योंकि तुसीं पढ़िया होया भी सोलेनोइड दे बाहर फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुंदा हुंदा, सोलेनोइड दे अंदर अंदर प्रोड्यूस हुंदा हुंदा। जिस सोलेनोइड चों करंट फ्लो करदा हुंदा उसे दे अंदर अंदर प्रोड्यूस हुंदा हुंदा। तां बेटा सैकेंडरी कोयल चों करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो कल्ला फील्ड सैकेंडरी दे अंदर अंदर रहेगा, सैकेंडरी दे अंदर अंदर, है ना। हुण आपां पहलां सैकेंडरी कोयल दे करंट कारण सैकेंडरी कोयल दा फ्लक्स कढ लो। ड्यू टू करंट इन secondary coil, magnetic field produced in secondary coil is, secondary coil का field काट लो बेटा, कितना field होएगा, सेम कंसेप्ट, म्यू नोड एन आई। ठीक है, तो इत्थे बेटा म्यू नोड, secondary coil दिया नंबर ऑफ टर्न्स N2, लेंथ L, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंदा ना बेटा, वो लगाता। क्योंकि सैकेंडरी कोयल है तो सैकेंडरी कोयल दी टर्न्स लवांगे उसकी लेंथ। ओके, अच्छा हुण ये आ गया सैकेंडरी दा फील्ड। ओके, हुण प्राइमरी दी एक टर्न दा बेटा, एक टर्न दा देखो, एक टर्न दा फ्लक्स कढ लो, एक टर्न दा, आ वाली सारी टर्न दा मैगनैटिक फ्लक्स ऑफ वन टर्न ऑफ प्राइमरी कोयल, one turn of
प्राइमरी कॉइल इज बेटा एक टर्न का फ्लक्स कढ़ना है प्राइमरी का है ना। फ्लक्स का फार्मूला बी ए कोस थीटा, मैगनैटिक फील्ड सैकेंडरी का, एरिया एरिया प्राइमरी का है, लेकिन वो एरिया लेना है दैट एरिया विच लाइज इनसाइड मैगनैटिक फील्ड। मैं थोड़ा ये पॉइंट पहला भी दसिया सीगा, मोशनल EMF वाले टॉपिक च दसिया सी भी फ्लक्स जो कैलकुलेट करना होंदा वो एरिया लेना होंदा जिहड़ा फील्ड के अंदर है, जिहड़ा एरिया फील्ड तो बाहर है उहदा तो फ्लक्स ही नहीं होना। इत्थे बेटा सैकेंडरी कॉइल का सारा एरिया फील्ड च सी, फस्ट डायग्राम च सैकेंडरी कॉइल का सारा एरिया फील्ड च सी, तो इत्थे असीं सैकेंडरी कॉइल का सारा एरिया ले लैंदे सी। पर इत्थे प्रॉब्लम है इस कंसैप्ट च प्राइमरी कॉइल का कुछ एरिया फील्ड च नहीं है। कुछ एरिया आ वाला जिहड़ा मैं क्रॉस लगाए ने आ वाला एरिया फील्ड तो बाहर है बेटा, ये एरिया फील्ड च नहीं है। सिर्फ आ जिहड़ा रैड लाइनस नाल शेडिड है कला उही एरिया फील्ड च है। तो इत्थे बेटा सैकेंडरी का फील्ड तो हो गया म्यू नॉट N2/L/IS। एरिया प्राइमरी का, लेकिन वो एरिया जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड च है कितना एरिया होएगा बेटा जिन्ना इहदा रेडियस है सैकेंडरी कॉइल का। सैकेंडरी कॉइल का रेडियस कितना R2, तो बेटा कितना एरिया आ जाएगा इत्थे पाई R2 स्केयर आ जाएगा। चेक करो उरे भी पाई R2 स्केयर सीगा, उरे भी पाई R2 स्केयर, इत्थे पाई R2 स्केयर तां सीगा क्योंकि असीं सैकेंडरी का फ्लक्स कढ रहे सी ते सैकेंडरी का सारा एरिया मैगनैटिक फील्ड च सी, तो सारा एरिया ले लिया। इत्थे असीं फ्लक्स किहदा कढ रहे हैं बेटा प्राइमरी का, बट प्राइमरी का सारा एरिया मैगनैटिक फील्ड च नहीं है, प्राइमरी का कुछ एरिया ही मैगनैटिक फील्ड च है। जिन्ना एरिया मैगनैटिक फील्ड च है वो लेना है, वो एरिया कितना है कला पाई R2 स्केयर है, पाई R1 स्केयर तो वड्डा एरिया आ गया, आ छोटा एरिया लेना है पाई R2 स्केयर इन्ना एरिया है ना। इत्थों फिर एक टर्न का फ्लक्स आ गया टोटल फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, टोटल फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, टोटल फ्लक्स करना है जिन्ना एक टर्न का फ्लक्स आया उन्होंने प्राइमरी दियां नंबर ऑफ टर्नस नाल मल्टीप्लाई कर दो। एक टर्न का है म्यू नॉट N2/IS पाई R2 स्केयर बाई L N1। फ्लक्स का फार्मूला MI, आई केड़ा IS नाल IS कैंसल, तो बेटा M का फार्मूला बन गया म्यू नॉट N1 N2/L इंटू पाई R2 स्केयर। तो चेक करो इन्हां दोनों फार्मूलियां च आ देखो इस फार्मूले च भी तो इस फार्मूले च भी चेक करो अंदर जिहड़ा एरिया है वो हमेशा स्मॉलर एरिया लेना है, चाहे करंट वड्डी कॉइल चो फ्लो करे चाहे करंट छोटी कॉइल चो फ्लो करे, चाहे जिहदा एरिया लार्ज है उस चो फ्लो करे करंट, चाहे जिहदा एरिया स्मॉल है उस चो फ्लो करे, एरिया हमेशा इनर सोलेनॉइड का ही लेना। जे एरिया डिफरेंट है ना बेटा दोनों कॉइल्स का एरिया डिफरेंट है ना, दोनों कॉइल्स का एरिया डिफरेंट है, तो एरिया हमेशा इनर सोलेनॉइड का ही लेना। तो ये वो टॉपिक है जिस जो एरिया डिफरेंट हो गया। समझ आ गया बेटा। दिस इज़ अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन, ये म्यूचुअल इंडक्शन बारे है। चैप्टर आलमोस्ट कंप्लीटेड है, एक या दो छोटे ये कंसैप्ट्स रह गए मैं वो भी कंप्लीट करता बेटा, क्यों उन्होंने वास्ते नैक्सट वीडियो पर जाना आप इसे वीडियो के विच वो छोटे ये कंसैप्ट्स हैं वो कंप्लीट कर दे बस, फिर अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा 4.1। ओके छोटे ये कंसैप्ट हैं जिमें आप ग्रुपिंग करते सी ना रजिस्टेंसिस दी कैपेसिटर्स दी, उमें कॉइल्स दी ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स सीरीज ग्रुपिंग पैरेलल ग्रुपिंग ते नेट इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी उन्होंने कितनी होगी। ठीक है फर्स्ट है सीरीज ग्रुपिंग है ना, एंड बेटा फिर इधर बाद चो सैकेंड डिस्कस करांगे पैरेलल ग्रुपिंग, वो तो सांझा टॉपिक है दैट्स वाई मैं थोड़ा फटाफट करवा देना है। सीरीज ग्रुपिंग च जिहड़ियां कॉइल्स हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये फर्स्ट कॉइल होगी,
सेकेंड कॉयल, थर्ड कॉयल। फर्स्ट कॉयल दा सैल्फ इंडक्टेंस L1, सेकेंड कॉयल दा L2, थर्ड कॉयल दा L3। ठीक है। एंड पैरेलल च बेटा कॉयल्स नूं असीं पैरेलल च कनैक्ट करांगे। फर्स्ट कॉयल, सेकेंड कॉयल, थर्ड कॉयल, all are connected in parallel, all are connected in parallel to each other, L1, L2, L3। ठीक है बेटा। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ याद है सीरीज़ च की सेम ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? सीरीज़ च की सेम ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, की डिवाइड ਹੁੰਦਾ ਸੀ? सीरीज़ च करंट सेम ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, वोल्टेज डिवाइड ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ बेटा इस च सारिਆਂ ਚੋਂ करंट सेम रहेगा क्योंकि एक पाथ च ने ना ते ऑल आर इन वन पाथ, सो करंट सेम रहेगा, वोल्टेज अलग अलग होएगी, EMF अलग अलग इंड्यूस होएगी। फर्स्ट दी E1, सेकेंड दी E2, थर्ड दी E3, वोल्टेज EMF नेट EMF E। एंड पैरेलल च करंट डिवाइड ਹੁੰਦਾ ਸੀ, वोल्टेज सेम ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ वोल्टेज ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ सेम रहेगी E, करंट अलग अलग होएगा, जिमें फर्स्ट दा I1, सेकेंड दा फर्स्ट दा I1, सेकेंड कॉयल दा I2, थर्ड कॉयल दा I3, एवें करंट डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगी सारे च। इस च भी E, इस च भी E, इस च भी E, क्योंकि पैरेलल च वोल्टेज सेम रहती हुंदी है, करंट डिवाइड हुंदा एंड सीरीज़ च वोल्टेज डिवाइड हुंदी है, करंट सेम रहिंदा हुंदा है ना। ये कंसैप्ट लगाना। अच्छा हुण आपां ने फार्मूला किया होया बेटा E इज़ इक्वल टू L di/dt किया है ना। ये फार्मूला कली कली कॉयल ते लगा दो। फर्स्ट कॉयल ते की लगेगा बेटा? फर्स्ट कॉयल वास्ते फार्मूला, फर्स्ट कॉयल दी EMF E1, इंडक्टेंस L1, करंट I है ना। सेकेंड कॉयल ते की लगेगा बेटा? ये फार्मूला सेकेंड कॉयल वास्ते EMF E2, इंडक्टेंस L2, करंट I है। थर्ड कॉयल वास्ते लगेगा EMF E3, इंडक्टेंस L3, करंट I है। करंट सेम है सारे च, सिर्फ EMF अलग अलग है ना। समझ गए? तो बेटा बिकॉज आपां नूं पता जी नैट EMF E है, दैट इज़ इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। वैल्यूज़ पुट कर दो। E की वैल्यू L di/dt, E1 की वैल्यू L1 di/dt, E2 की वैल्यू L2 di/dt, E3 की वैल्यू L3 di/dt। तो L di/dt इज़ इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। इन्हां चों बेटा di/dt कॉमन आ गया, di/dt नाल di/dt कैंसल, L का फार्मूला सीरीज़ वास्ते बन गया। दैट मीनस when the coils are connected in series grouping, जो coil series च combined होन series, फिर तुसी उन्हां दी नेट इंडक्टेंस एवें फाइंड आउट करोगे अलजैब्रिक सम करके। हुण इधर पैरेलल च फाइंड आउट कर लैंदे। पैरेलल च की चीज़ डिवाइड हुई है? करंट। तो जिहड़ा आपां फार्मूला E इज़ इक्वल टू L di/dt है, एक करंट की फॉर्म च बन जाएगा बेटा E/L di/dt है ना। तो बेटा ये फार्मूला फर्स्ट वास्ते कितना बनेगा? फर्स्ट कॉयल वास्ते EMF कितनी है E, इंडक्टेंस कितनी है L1, फर्स्ट कॉयल का करंट कितना है I1 di/dt है ना। ये फर्स्ट कॉयल का बन गया, दिस इज ऑफ फर्स्ट कॉयल है ना। सेकेंड कॉयल वास्ते की बनेगा? EMF कितनी है E, इंडक्टेंस L2, करंट है I2। थर्ड कॉयल वास्ते यही फार्मूला फॉर थर्ड कॉयल, EMF हैगी है E, इंडक्टेंस हैगी है L3, करंट है I3। मतलब ये फार्मूला तिन्ने कॉइल्स ते लगाता। फर्स्ट कॉयल ते लगाया ये आ गया, सेकेंड कॉयल ते लगाया ये आ गया, थर्ड कॉयल ते लगाया ये आ गया। ठीक है। हुण आपां नूं पता भी जिहड़ा I है दैट इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3।
है ना, डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू डी टी, डी आई बाई डी टी, डी आई वन बाई डी टी, डी आई टू बाई डी टी, डी आई थ्री बाई डी टी, है ना, डिफ्रेंशिएट करता, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, डी आई बाई डी टी की वैल्यू ई बाई एल, डी आई वन बाई डी टी की वैल्यू ई बाई एल वन, डी आई टू बाई डी टी की ई बाई एल टू, डी आई थ्री बाई डी टी की ई बाई एल थ्री। ई कॉमन निकल के इधरले ई नाल कैंसल हो जाएगा, वन बाई एल इज इक्वल टू वन बाई एल वन, वन बाई एल टू, वन बाई एल थ्री, है ना। ये फार्मूला बन गया पैरेलल वास्ते। ठीक है, तो जो कोइल्स पैरेलल च कनैक्टेड होन तो ये फार्मूला लगा लिया करो, रेसिप्रोकल्स दा सम, सीरीज च होन तो है ना। सेम कंसैप्ट रखा है मैं, वही जिहड़ी चीज़ आ फार्मूला है, जिहड़ी चीज़ डिवाइड हुई है फार्मूला उसकी फॉर्म च बना के सारे ते अप्लाई कर दो। आ देखो ये फार्मूले च EMF डिवाइड हुई सी, तो यह फार्मूला EMF की फॉर्म च बना के तिन्ना ते अप्लाई करता, फिर EMF वाला लिख लिया, इस वैल्यूज पुट करके आंसर। इस करंट डिवाइड होंदा सी, ये फार्मूले नूं मैंने करंट की फॉर्म च बना लिया, करंट की फॉर्म च बन गया बेटा। इत्थों ये फार्मूला करंट की फॉर्म च बन गया, ये फार्मूला तिन्ना ते अप्लाई करता, फिर करंट वाला रिलेशन यूज़ किया, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, फिर वैल्यूज पुट करके रिजल्ट। क्लियर बेटा, ये अपना यूनिट 4th का फर्स्ट चैप्टर पूरा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।